Building a multi-crore business from scratch. I would, attribute it to 3 Ds. The first D is that you start delegating work. The second D is deep work. And the third D is complete cross. And इस टाइम पे कोई challenges आ रहे थे आपको? जिस दिन चैलेंज नहीं आता था उस दिन मेरे को लगता था कि क्या हो रहा है. तो किस तरीके के challenges आ रहे थे? टेलर ने माल टाइम पे नहीं देना, कपड़े वाले ने कपड़ा टाइम पे नहीं देना, बहुत छोटा हूँ तो काम नहीं करना. आई थिंक इट वाज द 4th और 5th ईयर ऑफ हाइमटेक्स और हमारी फैक्ट्री में आग लगी थी, पूरा बर्न डाउन हो गया. इवन वेन वी वर वेरी स्मॉल, बहुत बड़ा बूथ लिया था, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. पहले साल हमने हाइमटेक्स लगाया तो वी केम बैक विद जीरो बिजनेस. अच्छा. सेकेंड ईयर ऑल्सो जीरो बिजनेस. थर्ड ईयर वी गॉट अ क्लाइंट जो आज भी हमारे साथ है. Was there a time when you felt like giving up? अच्छा हेडस्पेस में नहीं था तो मैंने ना कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले लिए. Okay, such as? तो वो मैंने एक सट्टा लगाया जो मैंने गलत किया और वो हमारी कई साल की अर्निंग को डुबो के ले गया. अच्छा. Can you break down the whole industry for us? क्या क्या है supply chain में, just for everyone's knowledge? हम लोग 3 चीजें करते हैं. हम लोग ना बहुत हाई फाई रिटेलर्स के साथ काम भी करते हैं. वो हमें बता देते हैं कि 2 साल बाद क्या बिकने वाला है मार्केट. नंबर 2, कॉम्प शॉपिंग. ना कॉम्प शॉपिंग इज कंपेटिटिव शॉपिंग. अपना कस्टमर के पास जाके हमारे माल के अलावा कंपेटिटर क्या दे रहा है. एंड थर्ड, Deepak, from joining a business in 9th grade to building a multi-crore business from scratch to now being a business coach, you've had a remarkable journey. Let's start from the beginning. Let's start with कि नटराज करता क्या है, an idea कैसे आया आपको करने का ये. so my like I told you that in Mandal Commission holidays when I was in class 9th, I was 15, that is about 32 years ago. I was my father had a domestic home furnishing business. They have got about still it's a family run business. They've got huge setup. Home furnishings was in our textile was stocked on dinner table, on coffee table, wherever. So it was a very natural progression. But I did my MBA in international business from Delhi School of Economics. So मुझे लगा कि चलो इसी प्रोडक्ट को ना अगर हम बाहर बेचते हैं. बट वो जितना मैंने आसानी से कहा ना उतना मुश्किल था. बिकॉज यहाँ वाला जो एज इट इज द मेडअप है, फॉर एग्जाम्पल अ पिलो और अ बेडशीट और whatever we do, all the made-ups, completely not sellable in the export market. It has to be completely different design, material, quality, weight. मतलब वो बिल्कुल ही फर्क है. अगर ग्रास रूट लेवल पे जाओ तो उसके अंदर धागा सेम है बट बाकी सब फर्क है. तो would you say कि because you had a setup एक at least एक advantage था? Yes, definitely. Okay. And the biggest advantage besides this, the way my Tayaji spoke to me was I used to speak and deal with a lot of customers pan India. तो मुझे ना बात करने की झिझक नहीं होती थी. Okay. Number 1. Second, I mean, when you are showing the goods to the customers, they would say yes or they would say no. हम लोग ना मैं बोलता हूँ सबको कि हम लोग व्यापारी लोग हैं. हम लोगों को ना नो बोलने से ना, नो सुनने से डर नहीं लगता. So never felt shy of hearing a no. I said no is for now, it's not for never. So Okay. let it be. तो वो कोर्स से आपको लगा कि चलो इंटरनेशनल ले जाते हैं. जी. बट कन्विक्शन कहाँ से आई कि ये करना है? बिकॉज लाइक यू सेड इट्स नॉट इजी. थोड़े टाइम में आपको लगा हो कि अरे तो सब कुछ ही नया करना पड़ रहा है. तो व्हाट वाज ड्राइविंग दैट कन्विक्शन? अगर मैं बहुत ही इस पे रिफ्लेक्ट करूं कि व्हाट वाज ड्राइविंग दैट कन्विक्शन वाज आई डोंट वांट टू बी स्टक इन द सेम फील्ड. बिकॉज डोमेस्टिक बिजनेस में ना अपने पैसे को मांगने के लिए भी ना आपको लोगों को जी हजूरी करनी पड़ती है. Recovery is a huge problem. Yeah, recovery is a huge problem because the culture and the mindset is that. I said I will do everything in my capacity to build a business, but I would never cajole or request any third person or any customer of mine जिनके पास हमने merit पे काम दिया है to ask for money. Okay? And I saw it was a natural progression कि export में it's very systematized. You send the goods on time, you'll get the money. So that was one very big factor because I hated asking for money. And was that something that you had when you joined the family business? आपको वो करना पड़ा और वहां से आपके माइंड में आया कि यार ये नहीं करना है? नहीं, मुझे करना नहीं पड़ा. मैं देखता था घर पे. मतलब घर पे देखता था, मैं पूरी बाजार में देखता था. It was a trend, it was a culture. Like it was, for example, दिल्ली में पोल्यूशन है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में. So it was और जो there. आज भी प्रॉब्लम है. Yeah, so it's there. It was there, and it has even gotten worse. So that was one driving factor. And the second was, we were in a joint family and a lot of cousins and everyone was there. तो मुझे हमेशा ही लगता था कि my mom has been a champion
behind me. मुझे और मेरी मॉम को लगता था कि I'll always be disguised unemployed. क्योंकि छोटे मोटे डिसीजन लेने के लिए भी, and I was a free thinker. So I think that is what propelled from the merit side, the financial leverage कि आपको पैसे मांगने पड़ते हैं, and from my own mindset side कि यार अपनी लेगेसी बिल्ड अपनी लेगेसी बिल्ड करेंगे, and I will be, मतलब मैं बॉन्साई बन जाऊंगा. From a towering tree I would end up becoming a bonsai. So that means you didn't start this as a subsidiary. You started as a separate company altogether. Yeah, absolutely. I started it from garage, no money taken. Used my dad's contact to buy the raw material. My dad probably gave guarantees to the suppliers कि नहीं, अगर वो पैसे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा. But that's it. So then it started. And funnily, what we do right now is home decor, beautiful textiles, fashion. We supply to some of the best names in the world right now. But my first shipment was of shawls. जो shawls होती है ना, shawls with beads. Because वो customer मिला. तो एक बार थोड़ा सा before we go to the customer, tell us about the initial days कि जब आप शुरू करने लग रहे थे तो क्या हो रहा था उस टाइम पे? यही सब कुछ हो रहा था. जहाँ पे जो मैं जाता था, ITPO पता है आपको, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन. Okay. प्रगति मैदान के पीछे there is actually मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का there is this cell. सरकारी सेल है जहाँ पे आपको ना ट्रेड का डेटा मिलता है. अच्छा. I'm talking about the pre-Google and the pre-internet days. So I used to look out for the buyers, write them letters, send them emails. Okay. 200 मेल, 500 लेटर्स के बाद किसी का जवाब आया, उसने बोला हमें ये नहीं ये चाहिए. तब भी है ना, फेयर्स होते थे यहाँ पे प्रगति मैदान में. हम फेयर में आ रहे हैं, मैं तो नहीं लगाता था फेयर में, आप हमसे मिल लेना. सो एक बायर मेरे पास आई. She said, okay, I don't want anything else. Can you source this shawl for me? Okay. And that's how you got your first customer and your first product. Yes. Okay. Yes. My first product was given to me by my first customer who had no relation with home furnishings. Okay. Who wanted a shawl. I said, yeah, fine, let it be a first shipment. And कैसे किया आपने, मतलब how did you find the manufacturer? How did you source that product? So I dug into my family contacts. Found a manufacturer in Barabanki. Now Barabanki is a very small town near Lucknow. Okay. Contacted him. उसको phone किया. He sent me the samples. I went to Barabanki, got it made. अच्छा. Got the goods with myself in train, and then got it transported. Got the samples approved. छोटी सी shipment थी. 3-4 हजार pieces. Okay. Got it done. Okay. What happened from there then? Then I understood that there is a room for even the smallest player. ऐसा नहीं है कि बिग गन्स के पास ही बिजनेस आएगा बाय डिफॉल्ट. क्योंकि आपको फेयर में एक ऑर्डर मिल गया तो कुछ तो हो सकता है. मतलब फेयर में मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा. फेयर में वो कस्टमर फेयर देखने आई है, उसने मेरे को सिर्फ अपॉइंटमेंट दे दी अपने होटल के कमरे में. दैट वाज द डिफरेंस. तो मुझे ये विश्वास होना शुरू हो गया कि काम तो होता है. एंड देन आई आल्सो स्टार्टेड टू सी, जैसे आपको बायर्स का डेटा मिलता था वैसे ही आपको फेलो एक्सपोर्टर्स का भी डेटा मिलता था. यू नो दीस पीपल आर एक्सपोर्टिंग दिस मच, दैट मच, हियर एंड देयर. So then I started to have that conviction again, going back to the Tayaji days, look at things closely to see clearly. I started to look at things ki nahi, ye hai. So if I'm prepared, why not? So then started to attract the right customers, started to have a lot of meetings. For shawls? No, not for shawls. So then I started to attract the customers who were doing home textiles, importers. तो आपने डिसीजन लिया कि ऑल्दो मेरे पास शॉल का कस्टमर है, मेरे को शॉल नहीं करना है, मेरे को होम टेक्सटाइल करना है. मेरे को करना होम टेक्सटाइल ही है. शॉल तो इज अ बाय डिफॉल्ट आ गया तो चलो कर लिया. एक स्टार्ट कर लिया. एक समझ लो एक इनिशिएट हो गया. हाँ, बट आपका माइंड क्लियर था कि होम टेक्सटाइल करना है. हाँ जी. ओके. यस, एब्सोल्युटली. एंड ट्रेड्स में जाके ये सब डेटा आप ढूंढ रहे थे? ट्रेड ITPO पे जाके डेटा ढूंढा. एग्जीबिशन में मैं घूमने बहुत जाता था. Then once or twice I did हमारे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है जर्मनी में, which is called the Heimtex. फ्रैंकफर्ट में होता है. वहां पे मैं सिर्फ विजिट करने गया. Started making some contacts, started showing my face around, and there are a lot of so the foreign buyers have got a lot of representatives in India. Okay. They are called the buying agents, or they are the sourcing companies who consolidate the buyers, do the QC, etc. तो उनसे बात करी, उनसे वो करा, उनको कन्विंस करा. बाइंग एजेंट्स कहाँ से ढूंढे आपने? वही ITPO से या नेट से या आज भी ऐसे मिल जाएंगे लोगों को बाइंग एजेंट्स? मिल तो जाने चाहिए. Okay. बट अब तो सब गूगल पे है. ITPO तो डिफंक्ट है. अब तो these guys are names and they've got their associations. LinkedIn पे भी मिल जाते हैं. Sure. Yes. So when did you get your first customer? Apart from shawls, for home textiles? Immediately after that. I think a couple of months, very small order of
very high fashion beadwork and embroidery, Hmm. but they were all cushions. So the second consignment was of home textiles. Okay. And then what about your first 5 or 10 clients? Like, how were you expanding your client list from there? So as far as expanding the client list was concerned, it was more a matter of beggars are not the choosers. जिन्होंने हमें बोला कि हमारे को तुम्हारे से काम करना है, हमने उनके साथ काम किया. जिन बाइक एजेंट ने बोला भाई ये $5 में कर रहा है, क्या तू 480 में कर सकता है? मैंने कहा ठीक है, कर सकता हूँ जी. Hmm. जिन्होंने बोला यार हमसे ये कलर ये मैच नहीं हो रहे, ये स्टैंडर्ड्स मैच नहीं हो रहे, मैंने कहा ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट to break the ground, to cut, as an icebreaker with any of your customer, you'll have to give him something which he's not. You have to solve his problem. And I think that is what works till today in any of the businesses. Uski problem humne solve kari. It could be price, quality, delivery, material, new material, anything. And इस टाइम पे कोई challenges आ रहे थे आपको? Were there things that you were doing that were not working to get your initial customers? जिस दिन challenge नहीं आता था उस दिन मेरे को लगता था कि क्या हो रहा है. अच्छा. तो किस तरीके के challenges आ रहे थे? कोई भी नहीं. कोई supplier आपको, I did not have, I was a garage company, so I did not have any. I just had a helper with me. So टेलर ने माल टाइम पे नहीं देना, कपड़े वाले ने कपड़ा टाइम पे नहीं देना, बहुत छोटा हूँ तो काम नहीं करना, मतलब किसी ने काम ही नहीं करना, पैसे पहले रखवा लेते फिर भाग जाना, अच्छा. फोन ना उठाना. हाँ. मुझे याद है कि गाड़ी में भर भर के मैं माल X से Y से Z तक लेके जाता था और फिर वापस आके अपने गैराज, मतलब जो मेरे घर के नीचे ही था, डब्बे पैक करके हम शिपमेंट भेजते थे. तो चैलेंजेस तो आई मीन इट वाज everywhere, every day, every And time. the reason I'm asking this is so that when entrepreneurs today face these kind of challenges, उनको ऐसा ना लगे कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. मेरा पर्सपेक्टिव ये है पूछने का कि उनको लगना है, उनको पता होना चाहिए कि यार ये नॉर्मल है, शुरू में करना पड़ता है. See, entrepreneurship itself is moving out of your comfort zone. Okay. Now, if you move out of your comfort zone, then you are actually in a challenging environment. मतलब हाँ, उसका by definition. By definition. So, if you've decided to become an entrepreneur, please move out of your comfort zone, because if you live in your comfort zone, if you stay in your comfort zone, then entrepreneurship is not for you. To be successful, you have to get up from your seat and do what is required to be done. So when you were getting these 5-10 clients, what I'm understanding is कि आप अपना surface area बढ़ा रहे थे. कि buying agents को बता दो कि मैं काम कर रहा हूँ, सबको letters लिख दो. Visibility. And कोई ना कोई तो बता ही देगा. Yes, absolutely. Right? Absolutely. So when did you hit your first crore in revenue? I think it was 2005, something like that. 2005. So 6 years it took you. Yeah, 4 years. 4 to 6. 4 years. 4 years लगे हमें. और उसके बीच में करोड़ जो हिट किया वो सस्टेनेबल था, बट आई वाज ओनली ब्रेकिंग इवन. वी वर नॉट बर्निंग कैश. ओके. हम लोग आजकल के स्टार्टअप्स की तरह वो मेरे को, आई मीन दैट्स अनदर स्टोरी फॉर अनदर डे. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, हाउ कैन यू burn cash and still, but I was doing break even because I was most of the time picking up orders which were being refused by my competitors, bigger ones. तो आप मार्जिन कम रख रहे थे? मार्जिन कम रख रहा था, या मेरे, अच्छा एक तो मैं प्राइस कम दे रहा था, दूसरा मेरे खर्चे भी ज्यादा थे because I was a small player. So but that first crore was hit. But then when first crore was hit and my supplier started to see कि इसके पास repeat business आ रहा है, then I was able to negotiate a better deal, better price, better quality, better compliance from them. अच्छा, इस टाइम पे आपके माइंड में ये नहीं आया कि यार मैं तो ब्रेक इवन भी नहीं कर रहा हूँ, barely ब्रेक इवन कर रहा हूँ, ऐसे ही चलेगा क्या? बिजनेस का पॉइंट क्या है करने का? या आपने अपने पेरेंट्स को, फैमिली को करते हुए देखा तो आपको पता था कि यार शुरू में ऐसे ही होता है, बाद में जाके प्रॉफिटेबिलिटी आती है? देखो, आई एम अ टारगेट जंकी. टारगेट जंकी होता है ना कि एक टारगेट पकड़ लिया, जिसको साइकेट्रिक लैंग्वेज में ओसीडी बोलते हैं. मुझे था कि ये काम सस्टेन करना है, इस काम को बढ़ाना है, अब चाहे कुछ भी हो, और कोई रास्ता ही नहीं है. इट्स लाइक जो कहते हैं ना कि ए आई हैव टू डू दिस, बी लुक एट पॉइंट ए, वही देखना था. और सबसे खूबसूरत बात क्या हुई कि बिजनेस जब 1 करोड़ तो नहीं, जब 2, 2.5, 3 करोड़ था, तो मेरा ब्रदर, छोटा ब्रदर, इंजीनियरिंग कर रहा था, कपिल, इज 5 years younger to me. He's a massively talented guy, very, very process oriented.
उसने सारी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, सारी हमारी फंक्शनैलिटी की बैकबोन उसने एस्टैब्लिश करता है. Okay. So I am a talker, he's a walker. Okay. Okay. So once he came, then everything started to get wings. He is still there? He's still there. We Okay. still are there. Uh. We have our board meetings while we are driving down to the office in the same car. We live in the same house. And lunch पे हम खाना मतलब हफ्ते में 5 दिन इकट्ठा खाते हैं 6 में से. So that is where we work, and we are both very very replaceable. ऐसा नहीं है कि वो मार्केटिंग नहीं करता या मैं प्रोडक्शन नहीं करता, but we found a sweet spot in terms of whatever anyone can do better, he will do it. Correct, yeah. And there is no, the beauty of this relationship with me and my brother is there is zero ego, and we are partners who actually work like sole proprietors. मतलब हम ये ओनरशिप लेके चलते हैं कि यार भाई तो मेरा ही है यार, मैं और भाई तो एक ही हैं, you know, something like that. So we both are partners, but we work like sole proprietors. We don't, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता कि वो करेगा मैं करेगा, शक्ल नहीं देखते यार, अच्छा यार इसको करना है, ओके कर दिया. तो यू सेड 2.5 करोड़ तक तो ऐसे ही चल रहा था. अब लेट्स से कोई बिजनेस ओनर है जो 2.5 करोड़ पे, आप 2.5 करोड़ पे हो, यहाँ से 10 CR 15 CR की जर्नी कैसी दिखती है? Consistency and discipline. It gets very boring. It gets very challenging. But you have to be very consistent. Go to your desk, do what you're doing, pay your bills on time, answer your customers, respect your customers, don't compromise on quality. And ये quality जो है ना, it is, I would say, it is the most underrated word in our country. लोग नहीं समझते हैं कि quality कैसे maintain करी जाती है. What do you mean by that? It's very easy. आज मैंने suppose ये माल आपको $5 में दिया हुआ है, ठीक है? 90 days हमारे लीड टाइम है, 5 महीने के बाद जाना है. Suddenly there is a spike in the raw material price. Okay, now I can do two things. A, I can reduce my profit and supply the customer the same quality which I promised him at $5, or I can use a substandard material which can potentially earn me the same profit. लेकिन वो प्रोडक्ट जो सबस्टैंडर्ड मटेरियल से बन के जाएगा वो मेरे कस्टमर को उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देगा और वो रिपीट बिजनेस नहीं आएगा. Pay your bills so that your vendors trust you. Keep on talking to your customer. And once your goods are of the right quality and your customer makes money, they will come back to you and they will go deeper with you. You know, they will go deeper. Their buyers will go deeper and they will trust you with more. I think that is the only way to scale up from 2 to 5 to 10 or whatever. No, but then where does the sales expansion come from? हर client की एक capacity है, right? What else are you doing to grow your business, to find more customers, to maybe prepare your business to handle that kind of volume? So outwards exhibitions में, even when we were very small, I took बहुत बड़ा booth लिया था. It was very expensive. Because you see what happens is when customers see ना कि इसने इतना बड़ा बूथ लिया हुआ है, इसकी capability है, नहीं ये भाग नहीं जाएगा, ठीक है. एंड पहले साल हमने हेमटेक्स लगाया तो we came back with zero business. अच्छा. Second year also zero business. Third year we got a client जो आज भी हमारे साथ है 17-18 साल से. एंड पहले 2 साल जीरो बिजनेस के बाद आपको ही लगा कि भाई मैं क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पे? हाँ लगा, बहुत बार लगा. लेकिन फिर साथ वाले से बात करी, घर वाले से बात करी, दूसरे बात करी. सी जो मैंने आपको बताई ना, मैं गोइंग बैक टू माय फादर्स शॉप डेज, आई कैन टॉक टू एनीवन अबाउट एनीथिंग. मैं अपने कंपेटिटर जाके पूछता था, मैंने कहा सर मेरे पास काम तो आ नहीं रहा, आप कैसे सालों साल लगा रहे हो? उसने बोला भैया मंदिर है, दान करके जाना है यहाँ पे, और तीसरे साल दूसरे साल तीसरे साल देखियो तू क्या होता है. कहता तेरा तो 2 साल नहीं आया, मेरे तो 5 साल हुआ था. लेकिन उसके बाद जब बिजनेस आता है, जब कस्टमर आपको देखता है, there are regular customers who used to come to the fair, वो देखेंगे कि ना यार ये पिछली बार भी था, अब की बार, इसका मतलब एस्टैब्लिश फेयर है. वो तीसरे साल आपके बूथ में जाएंगे, या पहले दूसरे साल आपसे कोटेशन लेके जाएंगे, तीसरे साल आपके प्रोडक्ट और उनके प्राइसिंग मैच हो जाएगा. एंड देन द वर्ल्ड, यू नो, इट वाज अ वेरी फनी थिंग. आई थिंक इट वाज द 4th or 5th year of Hymetex, और हमारी फैक्ट्री में ना आग लग गई थी, तो हमने पूरा बर्न डाउन हो गया था. 2010 या 11 की बात होगी. एंड मतलब जब ऐसा होता है, लाइक इज इट लाइक कंप्लीट लॉस ऑफ मशीनरी, एसेट्स, एवरीथिंग, और वी वर इंश्योर्ड, बट सब कुछ सेटबैक लगता है, तो मैंने दोबारा सेटअप करना पड़ेगा. हाँ, तो मैंने कपिल से पूछा, मैंने कहा भाई Hymetex पे जाना है, दिस हैपेंड इन नवंबर,
And Hamtex happens in? जनवरी फर्स्ट वीक, Okay. ठीक है, 30-35 दिन में। तो कहता हाँ जाना है। मैंने कहा फिर जाएंगे और बड़ा बूथ लेंगे। और आप मानोगे नहीं, वो बूथ पे वी एक्चुअली हैड अ लाइन ऑफ कस्टमर्स वेटिंग। अपॉइंटमेंट लेके जाते थे, नो यूर टू बिजी, विल कम बैक, नो यूर टू बिजी, विल कम बैक, बिकॉज द कस्टमर्स लव द स्टफ टू मच। वो मतलब जिसके अंदर है ना, वो अंदर आग लग गई थी कि नाउ इनसे ही लेना है। नहीं, इनसे नहीं लेना है। आई मीन वी वर लुकिंग एट एक्सटिंक्शन, पैसे का नुकसान हुआ है। जिसे कहते हैं ना, जब खोने को कुछ नहीं होता है तो आदमी कहता है कि चलो, you know, why do these especially in India, why do these people of daily wage laborers and you know, people who are doing manual labor, they become the champion athletes kyunki they go all out. So in that exhibition we went all out. So that was a very big game changer. So for the young entrepreneurs, exhibition, marketing, meeting your customers, showing them what they want to do and give them many options so that they can reject from. उनके पास इतनी मल्टीपल ऑप्शंस हो कि वो कह सकें कि चलो ठीक है, you know, it's okay, this नहीं this, this नहीं this, they'll pick it up. ठीक है. Now let's talk about the journey from say 15 CR to 50 CR or just increasing the double digits. What does that journey look like? Does anything change there कि यही principles हैं और same ही चीज आप कर रहे हो? Internalize the processes. We are one of the very few vertically integrated companies. Not only it probably doubles your profitability, doubles, but it also gives you a command and control over all your processes. And why is that important to get from 15 to 50? कस्टमर आपके पास आएगा, उसको पता है कि सारा सेटअप है, आपकी चाल और ढाल ही बदल जाएगी। आप कहोगे अच्छा मेरे को ये स्वॉच आया है, ये कपड़े का कटिंग आया है, इसकी जगह ये कलर दे दे। एक मेरे को बाहर से सोर्स कराना है, वो लाएगा 10 दिन, एक मैं 10 घंटे में अपनी फैक्ट्री में से भेज दूंगा। एजिलिटी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, वेराइटी बढ़ जाती है, कंट्रोल बढ़ जाता है। तो कस्टमर स्टार्ट्स ट्रस्टिंग यू मोर। एंड जो दूसरा कस्टमर है, जो उसका कंपेटिटर है या जो ऊपर के स्ट्राटा में या नीचे के स्ट्राटा में एग्जिस्ट करता है, वो आपको ढूंढता हुआ आएगा कि इसका माल मेरे कंपेटिटर पे अच्छा बिक रहा है। सो दैट इज योर, सो वर्टिकल इंटीग्रेशन इज नॉट योर operational efficiency, that is your biggest marketing strategy. Because एक नया set of customers आपके लिए open up हो रहा है, Yes, जो पहले absolutely. आपके पास आता ही नहीं कभी। जो आते ही नहीं था, वो कहते नहीं यार these people are reliable, they do everything in house, let's go to them. And you would say from 15 to 50 it's all about vertical integration? Yes, vertical integration in addition to everything that you are doing. Yes, vertical integration, again consistency, vertical integration. पैसा आ जाने के बाद फैंसी गाड़ियां मत खरीद लो, इन्वेस्ट इन योर बिल्डिंग, इन्वेस्ट इन योर प्लांट, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्ट इन मशीनरी, एंड दैट इज वेयर आई क्रेडिट कपिल। ही इज ऑन टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी। उसको पता रहता है कि कौन सी दुनिया में, कौन सी कहाँ दुनिया में क्या मशीनरी आ रही है। और कभी कभी वो मशीनरी आती है, वो गेम चेंजर होती है, लेकिन वो अनअफोर्डेबल होती है, तो वो वेट करता है कि वो अफोर्डेबल हो जाए। इंटरेस्टिंग, यू नो, सो दैट उसका एक इकोसिस्टम हो जाए, उसके स्पेयर्स मिल जाए, उसकी इंक मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिंटिंग कार्ट्रिज है, तो वो फिर हम उसको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहते हैं। सो we are one of the very few vertically integrated units, and we invest massive amounts on upgradation. Very interesting. Yes. Okay, now let's talk about going from 50 to triple beyond, digits, right? Beyond digits. यहाँ पे क्या change होने लगता है? What does a business need to do from 2-3 aspects? One is of course कि आप एक business owner, आप सोच रहे हो मेरे को 50 से 200 करना है, क्या करोगे आप? What are your levers, right? And what else starts changing in the business? So I would, attribute it to 3 Ds. Okay. The first D is that you start delegating work. Okay. तो आप कह रहे हो 50 तक आप काफी कुछ खुद कर रहे हो, बट यहाँ से डेलीगेशन इज वेरी डेलीगेशन करना शुरू करना पड़ेगा। आप वरना डेलीगेट नहीं करोगे तो आप, एंड इट्स एन अग्रेसिव यस। ओके। सेकेंड, वट एवर वर्क यू आर डूइंग, डेलीगेट कर दिया आपने, मतलब आपने काफी सारा काम डेलीगेट करके आपने अपना हेड स्पेस फ्री कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 8 घंटे काम करता हूं, मैंने 3 घंटे का काम अपना डेलीगेट कर दिया। रेपिटेटिव प्रोसेस है, फॉलोअप्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो मेरे पास टाइम खाली आया ना, उसमें ऐसा नहीं है कि मैं मॉल चला गया, पिक्चर देखने चला गया। नो, दैट इज नॉट अ स्पेयर टाइम। उस 3 घंटे में ना मुझे डीप वर्क करना है। ओके, व्हिच इज द सेकंड डी। या द सेकंड डी इज डीप वर्क। और क्या करोगे आप उसमें? मैं देखूंगा कि मैं
कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर के शोरूम पे चला जाऊंगा, Okay. कॉम्प शॉपिंग करने जाऊंगा, देखूंगा कि बाजार में क्या नया धागा आया है, क्या नया प्रोसेस आया है। हमारे Research बहुत करोगे। हाँ हमारे बहुत सारे सब वेंडर्स होते हैं, किसी ट्रेड शो पे चला जाऊंगा, मैं कुछ भी करने चला जाऊंगा, आई वुड लाइक टू फाइंड आउट मोर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, बिकॉज नाउ आई हैव डेलीगेटेड एंड और नाउ-a-days तो टेक्नोलॉजी यू कैन डू वर्चुअली एनीथिंग, और if not for nothing, set up a Zoom call with your client, just check in, क्या चल रहा है, what is going well and what is not working, identifying the trends in the market. And the third D is distractions, complete cross. Now see, distraction and growth, 50 to 10 to 100 or 1 to whatever, anything distraction is inversely proportional. मतलब जैसे आग और पानी होता है ना, डिस्ट्रैक्शन आपके पैशन से बिल्कुल उल्टा है. इन टुडेज डे द ओनली करेंसी विच वी हैव इज नॉट मनी, इज नॉट रिसोर्सेस, इट्स आवर अटेंशन. नाउ अटेंशन, डिस्ट्रैक्शन इज द किलर ऑफ अटेंशन. सो डिस्ट्रैक्शन है, जैसे आज हम नेट पे बैठे हैं, हमने यूट्यूब देखना शुरू कर दिया या शॉपिंग करनी शुरू कर दी, इट्स वेरी इजी, द पॉपअप्स एंड एवरीथिंग. So distraction has to be a complete no. So if you follow the 3 Ds, it's self-perpetuating. So 100%, but I also want to cover the angle of ki how should a business person or business owner start strategizing? Should they be thinking कि अच्छा यार 50 से 200 का मतलब है कि मैं सेम प्रोडक्ट नहीं बेच पाऊंगा, मेरे को नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने पड़ेंगे, या उनको ये सोचना चाहिए कि यार मेरे को और मार्केट्स ढूंढनी पड़ेंगी सेम प्रोडक्ट के लिए, या इसका एक बैलेंस होगा? What did that look like for you? You coach other businesses as well. What does this process look like? See, I don't coach other businesses. Okay, I'm a business business Buddha. Buddha. I'm not a coach. I say that okay, you're doing your business, do it with awareness. Okay, now awareness को हम समझते हैं mindfulness, becoming a yogi and everything, but that is not it. How can you be aware while you're sitting on your business? आपके सवाल का ना बहुत एक मजेदार जवाब है. मैंने क्रिसमस मेले पे गया था, क्रिसमस कार्निवल पे गया था, तो आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट, चाणक्यपुरी में था यहाँ पे. दिस बॉय हु कम्स टू मी कहता है, भैया आई हैव गॉट समथिंग व्हिच विल मेक यू लुक लाइक शाहरुख खान. आई मीन यू ऑल वांट टू यू जस्ट, और उसकी ना एनर्जी ऐसी थी, वो मेरे को खींच के ले गया. अच्छा. मैंने कहा क्या करेगा, आई मीन व्हाट विल ही डू? कुछ नहीं, अनब्रांडेड जीन्स बेच रहा था. ठीक है, राहुल क्या, पता नहीं क्या नाम था उसका, काफी टाइम हो गया. और सेकंड फनी बात यह है कि आई एंडेड अप बाइंग 2 जीन्स. Okay. ट्राई किया था आपने? मैंने ट्राई करे, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं उससे जीन्स लेके निकल गया. लेकिन मैंने 2 चीजें नोटिस करी. बहुत स्लो माहौल था, सब खाने पीने धूप सेकने आए हुए थे, बाकी ओनर्स ना अपने फोन पे लगे हुए थे और वेट कर रहे थे कस्टमर्स का. वो कस्टमर को जाके, इस लेन में वो है, अगली लेन से कस्टमर मेरे को पकड़ के ला रहा है वो. सो दैट बॉय और दैट मैन, छोटा सा बिजनेसमैन है या बड़ा बिजनेसमैन है, ही न्यू हाउ टू बिल्ड मॉन्यूमेंट्स आउट ऑफ दी स्मॉल मोमेंट्स. उसने मेरे लिए मोमेंट क्रिएट किया ना, उसने फिर मॉन्यूमेंट, ही डिड बिजनेस, बेच दिया उसने, बेच दिया. एट द एंड ऑफ द डे, एनी, आपका एप्पल हो या आपका सैमसंग हो या आपका दुनिया भर की कोई भी चीज हो, रिलायंस हो, टेस्ला हो, माल तो सभी बेच रहे हैं. सो ही वॉज लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज. एंड सो once you're sitting on your business, once you're sitting in your office, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप 3 Ds फॉलो करो, आप अवेयरनेस के साथ बैठो. देयर इज सो मच ऑफ अबंडेंस आउट देयर. इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है कि आज हमारी इंडस्ट्री पे टैरिफ लगा हुआ है 50%. वी आर टेरिफाइड. आई कॉल नॉट टेरिफाइड, वी आर टेरिफाइड. बट आज की डेट में भी इतना काम है, अगर करने वाला हो, ठीक है, यू वेदर दैट स्टॉर्म. आई मीन एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू सर्वाइव, यू बी अवेयर, देयर आर अपॉर्चुनिटीज. लेकिन आपका बैंडविड्थ होना चाहिए. इट्स लाइक रेडियो है, रेडियो बैंडविड्थ कैसे कैच करेगा? अगर आप उसको घुमाओगे तभी तो कैच करेगा ना. समझ गए ना आप? वो डायल को घुमाओगे, अगर आप डायल ही नहीं घुमाओगे तो उसी चैनल पे रहेगा या वो करता रहेगा. So that is business awareness, that you need to reflect, you need to see what is going on, and then after reflection, भाई कुछ लोग सिर्फ काम करते रहते हैं और कंज्यूम करते रहते हैं.
कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, काम नहीं करते। Hmm. बट यहाँ पे क्या करना है बिजनेस बुद्धा को, बिजनेस अवेयरनेस को, कि रिफ्लेक्ट करना है और एक्ट भी करना है। Hmm. आपने कुछ सोचा कि मुझे ये करना है, और फिर सो द बायस इज टुवर्ड्स एक्शन, लेट इट बी रॉन्ग। Hmm. So my suggestion, my invitation to anyone who wants to scale from 0 to hero, or from 1 to 1,000 or 10,000 and beyond, is very simple. Have a bias towards action. Action लोगे, even if it's a coin toss, 50 गलत है 50 सही है, अगर नहीं action लोगे, सिर्फ रिफ्लेक्ट करोगे, तो वो तो जीरो है ना। That is On that same note, are there any one or two experiments that went wrong for you that you want to share? many, For not example, one, many. I mean, I was by default I'm a very confident guy, and एक बार क्या हुआ, हेमटेक्स पे एग्जीबिशन पे, देयर वाज दिस अमेजिंग बिग बॉक्स जापानीज रिटेलर, दे स्टेप्ड इनटू आवर बूथ, एंड उनको लगा कि निक्को ताकाशी माया, एंड निक्को वाज द सोर्सिंग हेड, शी वाज देयर, एंड शी लाइक द स्टफ, शी सेड ओके आई लव द सैंपल्स, यू नो सेंड मी द कोटेशन। जनवरी में हुआ, उसने कोटेशन भेजी, मैंने कोटेशन भेजी, शॉर्टलिस्ट करी, बहुत बढ़िया प्राइस भेजा, बहुत बढ़िया सैंपल भेजा। शी सेड ओके वी लव द सैंपल्स, वी आर गोइंग टू प्लेस द ऑर्डर सून। मैं अपने आप को ना मास्टर परसुएटर समझता था, और मुझे ना क्लोजिंग करने में बहुत मजा आता था। जनवरी का फरवरी, फरवरी का मार्च, मैंने उसको फिर मेल बोला, फिर मेल भेजा, वी आर गोइंग टू प्लेस द ऑर्डर सून, फिर मेल भेजा, फिर वी आर गोइंग टू प्लेस द ऑर्डर सून। मैं छटपटाना शुरू कर दिया, मतलब द चाइल्ड एंड द पर्सन हु यूज्ड टू थ्राइव ऑन क्लोजिंग डील्स। मुझे लगता था यार कि मैं तो किसी को भी कुछ भी करके कन्विंस कर सकता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 10, 12, 13 yeah, years back. yeah. मैंने उसको ना अल्टीमेटली एक बार बोला, मैंने कहा मैं जाता हूँ जापान, Hmm. मैं इसको क्लोजर लेके आता हूँ, बिकॉज यू नो आई वांटेड टू ग्रैब दैट वन, आई वाज वेरी इम्पेशेंट एंड आई यूज्ड टू कंसीडर दैट आई एम अ मास्टर परसुएडर। मैं गया, मैंने उसको बोला मैं आ रहा हूँ, कहती डोंट कम फॉर द ऑर्डर, वी आर गोइंग टू प्लेस द ऑर्डर सून, इट्स अंडर प्रोसेस, सिंपल। मैंने कहा नो नो नो, आई एम कमिंग टू शो यू न्यू सैंपल्स। कहती ओके वी वुड लव टू सी योर न्यू सैंपल्स। मैं गया, आइकॉनिक बिल्डिंग, जापान में तो आपको पता है एकदम ही सब हाँ। कुछ एकदम ऐसा था कि मैंने कहा ये तो दुनिया ही तो स्वर्ग में आ गया। आइकॉनिक बिल्डिंग, कॉर्नर ऑफिस, उनके हॉल में एंटर किया, white walls, black curtain, the team walked in very smartly dressed, and you know they did their bows, बैठे, सैंपल देखे, we love the sample, send us the quotation, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैंने बैग पैक किया, फिर मैं अपनी असलियत पे आया, मैंने कहा अच्छा भी पुराने ऑर्डर का क्या किया, क्योंकि मैं गया तो हिडन पर्पस से था। हाँ. वो हंसी, कहती है वी आर गोइंग टू सेंड द ऑर्डर सून, इट्स अंडर प्रोसेस। मैंने कहा नो आई हैव कम ऑल द वे एंड यू नो दिस एंड दैट, और मुझे लग रहा था कि मैं परसुएट कर रहा हूँ, बट मैं एक्चुअल में उसको आई वाज बीइंग वेरी वेरी पुशी। बहुत बोलने के बाद बहुत पोलाइटली वो चुप हो गई, वो चुप हो गई और वो गई। मैंने कहा ठीक है अब हो गया काम, ये अब सैंपल लेके आएगी। वो सैंपल लेके आई, मैंने सैंपल आगे रखे, उसने खोला, मेरे सारे सैंपल थे, उस पर कुछ लिखा हुआ था, उसने सैंपल मेरे आगे की, मैंने कहा अब ऑर्डर शीट निकालेगी। कहती है वी डोंट वांट टू वर्क विद नटराज। मैंने कहा व्हाई, आई मीन यू लव हर स्टफ एंड एवरीथिंग। शी डिड नॉट से एनीथिंग, बट अब मुझे रियलाइज होता है कि उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई ये इतना पुशी है, कल को तो बिजनेस में क्या कुछ होता है, आगे पीछे होता है, ये तो खा जाएगा हमें, मतलब यू नो ही जस्ट देयर वाज अ कल्चरल मिसमैच। Hmm. शी सेड, उसने फिर दो शब्द बोले, सॉरी वी कांट वर्क विद यू। तो कहां चौबे छब्बे बनने गए थे, दुबे बन कर आए, एंड दैट डोर, बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक कि आई एम अ मास्टर परसुएडर, all I needed was more patience. Hmm. That was a disaster. Did they ever work with you after that? Never. 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 It was disaster. सब कुछ सही, प्रोडक्ट सही, प्राइस सही, बस सब कैपेसिटी patience. सही, बस तमीज नहीं है, पेशेंस नहीं है। So, how did this experience change your way of working in the future? See, I came back and I consulted my father-in-law, who was we lost him too soon. He was a decorated police officer, and he taught me he always taught me life lessons. So मैं उनके पास गया, और वो बहुत मजेदार कहानी है। मैं उनके पास गया तो बाऊजी, कपिल साहब, उनको मैं बाऊजी बोलता था, माय फादर इन लॉ, डैड और बाऊजी। सो ही हैड अ विजडम ऑफ 500 years, एकदम आइकॉनिक लाइफ साइज पर्सन, प्राउड ऑफिसर। और आज की डेट में अगर पंजाब का टेररिज्म, यू नो अबाउट पंजाब टेररिज्म राइट, एक पोर्शन ऑफ पंजाब टेररिज्म is not there because of him. Oh wow, okay. Such a decorated officer, KPS Gill, Ribeiro साहब, और सारे के सारे हमारी शादी पर आए थे।
So बाबूजी के पास ना मैं off and on I used to go when I used to have these crises and disasters. So Suti my wife, मैंने उसको बोला पंचकुला रहते थे बाबूजी, तो हम घुसे कमरे में घुसे, बाबूजी बैठे थे अपने वो एकदम चौड़, he was confident and very very straight officer, used to be very proud and always cheerful. Okay. क्या कुछ नहीं देखा था उन्होंने जीवन में। तो वहाँ दो सिख बैठे थे और शायद लग रहा था कि आसपास के पिंड के हैं, यू अंडरस्टैंड पिंड राइट, Yeah, पिंड। yeah. तो उन्होंने बोला दीपक बेटा ये हेलो करो, मंजीत है। मैंने कहा जी मंजीत है। मंजीत गॉट अप प्राउड एकदम बढ़िया से, he said जी बाबूजी दे साडे कोल बहुत ही आशीर्वाद हैगा, हम एक पूजा कर रहे हैं घर में, आप भी आना। मैंने कहा जी मैं आता हूँ। मतलब गर्म जोशी से बात हुई, आई गई हो गई बात, ही वाज बीइंग पोलाइट। अब कपिल साहब और मैं ना, हमारी चाय पे चर्चा होती थी। नेक्स्ट डे वी वर सिटिंग इन हिज, बाहर उनका एक बहुत अच्छा लॉन था, ऑरेंज के पेड़ के नीचे बैठे थे और कपिल साहब और मैं बैठे थे। तो मैंने उनको बात बताई, कहते क्या चल रहा है? मैंने कहा जी जापान में ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने कहा बाबूजी एक बात बताओ, आपने तो पता नहीं कितने लोगों को कैसे कैसे क्या क्या करके देखा है आपने, मतलब इट्स नॉट इजी। ही वाज अ ब्यूरोक्रेट, ही वाज एन आईपीएस ऑफिसर डीलिंग विद द मिनिस्टर्स and the bureaucrats and the people and the public and terrorists. Yeah. मैंने कहा यहाँ तो इम्पेशेंट है, आप कैसे डील करते थे? तो वो अपनी ना सोच की मुद्रा में गए। मैंने कहा कुछ मजा आने वाला। I was heartbroken because of Takashi Miike. Yeah. बट मैंने कहा कुछ, तो कहते कल जो शाम को मंजीत आया था ना, मैंने कहा हाँ जी। कहते काफी टाइम पहले, 20-25-30 साल पहले ये टेररिस्ट बनने वाला था। मैंने कहा मंजीत तो टेररिस्ट, आई मीन अगर आप उसको देखो तो आई मीन ही डिड नॉट लुक लाइक द वायलेंट काइंड्स। टेररिस्ट तो फिर टेररिस्ट होता है। कहता है कपिल साहब ने बोलना शुरू किया, कहते हैं कि मुझे ऑर्डर आए थे कि ऑपरेशन करके आओ इनका, मतलब पटियाला के पास गांव था, आई वाज द एसपी देन, कि ऑपरेशन करके आओ। और मंजीत और छोटे छोटे थे, हवा खराब थी एंड दे जस्ट वांटेड टू, दे वर हेल्पिंग द टेररिस्ट एंड दे वांटेड टू पिक अप द गन्स एंड go all about it. कहते लेकिन कपिल साहब was a very aware police officer. He just did not go bang bang कि चलो ऑपरेशन का तो मतलब ये होता है ना। He did some groundwork, he did some research. अंदर तक वो गए, उनको लगा कि नहीं यहाँ पे ना माहौल इतना खराब नहीं है, पहले जाके बात करके देखते हैं। तो कपिल साहब ने बोला कि मैं ना गया, मैंने उनसे बात करी। I made sure कि मैं सादे कपड़ों में जाऊं, क्योंकि वर्दी का अपना एक ऑफ कोर्स पावर होती है, वर्दी की अपनी एक इट्स लाइक, और उस टाइम पे तो वर्दी आ रही है इसका मतलब गांव वाले कहेंगे कि कुछ गड़बड़ है। वो 20-30 जने प्लेन क्लोथ्स में गए और जहां पे प्रॉब्लम थी वहां नहीं गए, गुरुद्वारे में जाके बैठ गए और उन्होंने बातें करनी शुरू करी। बुलाया सीनियर्स को, बुलाया हेड ऑफ द फैमिलीज को, बुलाया हेड ऑफ द विलेज को, सरपंचों को बुलाया, जो भी उनकी लीडरशिप स्कीम थी। उन्होंने बोलना शुरू किया। कपिल साहब बोल रहे थे कि मैंने सुनना शुरू किया, वो बोलते गए, मैं सुनता गया, वो बोलते गए, मैं सुनता गया, वो बोलते गए। एंड में सुबह दोपहर को निकले थे हम 11 बजे दफ्तर से, शाम को 6 बजे तक कितना हमने कड़ा प्रसाद खाया, कितनी हमने चाय पी, वो बोलते ही रहे और हम सुनते ही रहे। और कपिल साहब ने मुझे बोला कि दीपक बेटा मेरे को पता चला कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो वन वाज हियरिंग देम, कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा। They had the same problems like all over India. सारी प्रॉब्लम सेम है, करप्शन है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एमएसपी नहीं आ रहा, which was a big deal then for the farmers. प्रॉब्लम सारी वही है, but they did not have, they were not being heard. पॉलिटिशियंस आता बोल के चले जाते, वो आते बोल के चले जाते, वो उनकी कोई आवाज ही नहीं सुन रहा था। तो उन्होंने बोला कि भैया ठीक है, हम उग्रवादियों के साथ ही मिलके हम कुछ करना शुरू कर देते हैं। We want to make ourselves heard. He went back to his, कपिल साहब कहते हैं मैं अपने वापस गया, दफ्तर गया, वहां से मेरे पे प्रेशर आया, मैंने उनको परसुएट किया नहीं रुक जाओ। जाते आते 6 महीने लगे और फिर एक दिन, पता नहीं कितनी बार उन्होंने ना सुनी, एक दिन एक छोटा सा फैक्शन, कहते ठीक है भाजी हम आपकी बात समझते हैं। कहते मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं तुम्हारी जीवन नहीं बदल सकता, बट आई विल बिकम योर वॉइस, आई विल बिकम योर स्पोक्स पर्सन, आई विल टेक यू टू द अथॉरिटीज एंड आई विल मेक यू फील हर्ड। उनकी इंजेन्युइटी से, उनके ट्रस्ट से, उनकी एम्पैथी से वो विलेजर्स टर्न अराउंड हो गए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि देख बेटा
ऐसे मैंने सिचुएशन से डील करी. अब कपिल साहब ऐसे तो नहीं था ना कि सबसे जाके बात करते थे. He was a police officer, he was a decorated police officer. So he used power also. मैंने ये बात बहुत सही से नोटिस करी कि his art of persuasion was not a trick of the mind. What I tried to apply it with Nico. And वो आप कपिल साहब ने उनकी बात, मंजीत के फैमिली की बात को सुना. He heard them out. मैंने निको की बात नहीं सुनी. वो कहते रुक जा. मैंने उसकी बात नहीं सुनी. So कपिल साहब, मैंने वापस आया, मैंने अपने बिजनेस में इसको एम्प्लॉय किया और मैंने इसको डॉक्यूमेंट किया जब मैंने अपनी अवेयरनेस की जर्नी शुरू कर दी कि दैट आर्ट ऑफ परसुएशन और आर्ट ऑफ नेगोशिएशन विद ऑल द क्लाइंट्स आर नॉट द सेम. किसी को कुछ चाहिए, कोई स्लो चलता है, कोई फास्ट चलता है. इट्स नॉट अ ट्रिक ऑफ द माइंड बट इट स्टैंड्स ऑन द पिलर ऑफ द हार्ट. मतलब दिल से आपकी बात सुननी है, संयम रखना है, पेशेंस रखनी है. सो दैट वाज अ गेम चेंजर. ताकाशी माया इवेंट, यस, दिल में मेरे अभी भी दर्द है. मतलब जिसे कहते हैं ना, बैटल स्कार मेरे अभी भी है. लेकिन आज हमारे कस्टमर समझते हैं कि नहीं, ये दीज पीपल आर वेरी रिलायबल, वेरी ट्रस्टवर्दी, दे लिसन टू अस, दे डोंट पेस्टर अस. सो दैट वाज अ ह्यूज लेसन इन पेशेंस, compounded by Kapil Saab's, my father-in-law's, breaking it down for me. And that I adopted in my business. And my suggestion to fellow business owners is, wait it out. Wow. संयम में ना, पेशेंस में बहुत बड़ा गेम चेंजर है. Wow, what a great story. Achha, quickly talking about the industry, can you break down the whole industry for us? From a customer in the US buying a curtain to all the way कि वो धागा कहाँ बनता है, क्या क्या है सप्लाई चेन में, just for everyone's knowledge? देखो, प्रोडक्ट ना अब डिफरेंशिएट होता जा रहा है. और आई वुड से दैट आफ्टर कोविड स्पेशली, द रिकवरी हैज बीन के शेप. नाउ के शेप में क्या बोलता हूँ, वी आर इन फैशन इंडस्ट्री. जो प्रोडक्ट ये चल रहा है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, वो वेपराइज हो जाएगा. मतलब वो एकदम कस्टमर उसको फटाफट से शेल्फ से उठा लेगा. इतना ट्रेंड ड्रिवन हो गया कस्टमर. जो प्रोडक्ट नहीं चल रहा है ना, वो स्लाइड डाउन होता जाएगा, चाहे प्राइस कम कर लो, चाहे कुछ भी कर लो. अच्छा, ओके. तो हमें ना ये ट्रेंड को पकड़ना है. हमें ट्रेंड को पकड़ना है, नंबर 1. नंबर 2, आप जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, इतनी वैरायटी है. इट्स ऑल अ मैटर ऑफ दैट हाउ यू कैन डिलीवर वैल्यू टू योर कस्टमर. नाउ वैल्यू इज नॉट प्राइस. वैल्यू इज एन इक्वेशन विच इज यूटिलिटी, फीचर्स, एंड वो प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन कैसे कर सकता है. सो वट एवर प्रोडक्ट यू आर मेकिंग, इन माई इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम yarn to weaving to dyeing to printing, there are multiples of processes. Even we are an AI enabled company. Whatever you're doing, it could be a simple product, it could be a very complicated product, it could be anything in the world. Just focus on delivering value and आपका काम बढ़ता जाएगा. तो आप कैसे डिफरेंशिएशन डिलीवर कर रहे हो? What have you done to differentiate? हम लोग 3 चीजें करते हैं. हम लोग ना बहुत हाई फाई रिटेलर्स के साथ काम भी करते हैं. उनके साथ हमें प्रॉफिट कुछ नहीं होता, उनकी क्वांटिटी भी छोटी छोटी होती है, लेकिन वो हमारे रिसर्च लैब्स होते हैं. वो हमें बता देते हैं कि 2 साल बाद क्या बिकने वाला है मार्केट में. अच्छा. Something like if you work with a very very big brand, they are ahead of the curve. जैसे Walmart के साथ सपोज काम. नहीं, Walmart is not a big, Walmart is a mass. For example, you work with Good Earth. Okay. Now Good Earth की अपनी एक स्टोरी है, अपनी लैंग्वेज है, लेकिन जो टेक्निक्स जो वो यूज कर रहा है, जो फिनिशेस वो यूज कर रहा है, वो मेन स्ट्रीम बन सकती हैं. ओके. ठीक है. तो आपने उसके साथ काम किया. हम उनको बोलते हैं एस्पिरेशनल रिटेलर्स, वो हमारे लैब है. उनके साथ हम काम करते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये आने वाला है. अच्छा, फिर हमें वो नई नई टेक्निक्स बताते हैं, वो हमें सिखाते हैं. नंबर 2, हम एक्सटेंसिवली ट्रैवल करते हैं, बाजार में छानते हैं. सो इफ आई एम गोइंग टू US for 5 days, 2 days cumulatively are dedicated for comp shopping. Now comp shopping is competitive shopping. तो आप दूसरे ब्रांड्स के स्टोर्स में जाके हम छानते हैं कि क्या बिक रहा है. अपना कस्टमर के पास जाके हमारे माल के अलावा कंपेटिटर क्या दे रहा है, अच्छा, कंपेटिटर क्या दे रहा है और कंपेटिटर क्या नहीं दे रहा है, वहां पे एक बहुत बड़ा स्पेस एग्जिस्ट करता है. एंड थर्ड, वी सब्सक्राइब टू द बेस्ट ऑफ द जर्नल्स. मतलब काफी महंगे जर्नल्स को सब्सक्राइब करते हैं, जो हमें बताते रहते हैं कि इस तरफ नेविगेट होगा. जैसे कलर ऑफ द ईयर क्या आ रहा है, ये सब वर्क करता है 100%. कोई W करके वो है ना, WGSN. हाँ, WGSN 7 साल से सब्सक्रिप्शन ले रखा है हमने उसका. हाँ, because someone else had also mentioned कि वो
कौन सा कलर वर्क करेगा, कौन से पैटर्न्स वर्क करेंगे, एंड वो एक्यूरेट है. Accurate नहीं है, but that becomes a trend. So, you know, WGSN is giving you academic research plus a lot of what is going on in the market. And then there are trade shows which are like, so there are aspirational retailers जो आपके lab की तरह हैं, and then there are trade shows also. जैसे for example Maison Objet है फ्रांस में. वहाँ पे local European importers, local छोटे छोटे boutiques को माल बेचते हैं, but they are ahead of the curve. Paris, France anyway is a little ahead. वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि ट्रेंड क्या आ रहा है. तो वो कलर ऑफ द ईयर को यूज करते हैं क्योंकि उसके पीछे एक साइंस है. इट इज बेस्ड ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, व्हाट्स गोइंग ऑन इन जियोपॉलिटिक्स, व्हाट डज द जनरेशन डिमांड. फॉर एग्जांपल आज की देखा रहे जियोपॉलिटिज्म सब एक दूसरे को. सो आजकल जो ट्रेंड आने वाला है वो काम और कोजी का आने वाला है. अच्छा. कलर कम हो जाएगा, कलर इज मैक्सिमलिस्ट. अब मिनिमलिस्ट कस्टमर आएगा. भाई बाहर तो सब रंग बिरंगी दुनिया है, घर में आके तो मैं सुकून से रहूं. इंटरेस्टिंग. You know, so this all works. This is science. ये कोई ऐसे हवा में नहीं चल रहे लोग. Sure. Yeah, so this is very organized. You know, this is a very organized, and I would say it is an art and a science. Art because how you interpret it. Science because it is backed by a lot of things which are, Academic lot of elements. Yeah. And can you break down the margins in this industry in terms of कि ये 2-3 products हैं, ये 2-3 product के इस तरीके के gross net वगैरह रहते हैं? मैं आपको ये छोड़ो, ग्रॉस नेट छोड़ो, मैं आपको ना एक मूल मंत्र देता हूं. आप कस्टमर को ऐसी वैल्यू दो, आप साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कर सकते हो. साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है आप पूछोगे. साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है कि जो मेरे को कॉस्ट की है वो छोड़ दो, वो कितना दे सकता है इस पे बात करो. Okay. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा कस्टमर 10 चीजें सिलेक्ट कर रहा है, मैं अपनी कॉम शॉपिंग से, अपने WGSN से, कॉम शॉपिंग मतलब देख के, बाजार देख के मुझे पता है कि ये चीज शायद मुझे 10% भी बेचनी पड़ेगी क्योंकि उसको इसके ऑप्शंस मिल रहे हैं. हाँ. ये चीज की वैल्यू इतनी है कि शायद मैं इसको 100% पे बेच सकता हूं. सो इसका जो तरीका है, यू डिलीवर वैल्यू, यू बी वर्टिकली इंटीग्रेटेड, यू कैच द ट्रेंड्स एंड यू डू साइकोलॉजिकल प्राइसिंग. नॉट दैट वी फ्लीस अवर कस्टमर्स, नो, बट एट द एंड ऑफ द डे माय कस्टमर्स आल्सो अंडरस्टैंड, एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट काम तो हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, मुफ्त सेवा तो कर ही नहीं रहे हम. ठीक है. Now I want to talk about untapped opportunities for people who are watching this and जिनको अपना बिजनेस शुरू करना है एंड कोई पैसे नहीं एज्यूम करते हैं, वो क्या कहाँ पे बिजनेस शुरू कर सकते हैं आज के टाइम में? अपॉर्चुनिटी कहाँ है, वाइट स्पेस कहाँ है? देखो, दो तरीके हैं. पैसे नहीं है, जज्बा है. जज्बा तो कुछ तो होगा ना, कुछ तो है. हाँ. कुछ तो होगा ना. कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. आप प्लीज कोई भी पोजीशन, as a whatever your skill set is, you're a designer, you're a merchandiser, you're a production head, whatever your skill set is, आप कहीं ना कहीं काम करके 6 महीने, 8 महीने, साल भर ग्राउंड लेवल पे काम को सीख लो. ओके. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब सपोज मेरी कंपनी में काम कर ले, सपोज आप मेरी कंपनी में आ गए एक डिजाइनर बन के काम, मेरे बहुत सारे एल्यूमिनाई ने, एक्स एम्प्लॉइज ने अपने काम शुरू कर लिया. ओके. तो आपको जहाँ जो भी बिजनेस शुरू करना है, पहले 1 साल कहीं पे ग्राउंड वर्क सीखो. ग्राउंड वर्क सीखो. स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड, स्टार्ट फ्रॉम जीरो. ठीक है. यू विल बिल्ड कॉन्टैक्ट्स, यू विल अंडरस्टैंड. और कथनी और करनी में जो फर्क है ना, आपको पता चल जाएगा. यू थिंक समथिंग बट थिंग्स हैपन नॉट द वे यू थिंक दे आर गोइंग टू हैपन. यू विल गेट अ रियलिटी की काम होगा कैसे. But would you say that's a hard rule, या बोलोगे कि यार अगर जॉब नहीं करनी है तो फर्स्ट डे से कूद जाओ? नहीं. I would say that is like throwing a dart. Okay. कितना डिफरेंशिएशन हो गया है, कस्टमर आपसे क्या क्या डिमांड कर रहा है. हम सारा वाइट लेबल हैं, वी आर ऑल वाइट लेबल. हमारे सारे ब्रांड्स के लिए प्राइवेट लेबल हैं. ठीक है. ए स्टोर का डिजाइन बी स्टोर पे नहीं बिकेगा क्योंकि उसकी सारी कलेक्शन वैसी है. यू नो, सो इतना डिफरेंशिएशन हो चुका है मार्केट में दैट यू कैन नॉट. एंड अच्छा, अगर आप कमोडिटी सेल करोगे, ब्रेड एंड बटर सेल करोगे, उसमें आपको अपने पल्ले से भी देने पड़ेंगे पैसे. यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड बिकॉज देयर आर बिगर, बेटर प्लेयर, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर already doing it. So if you have to create your niche, you have to first understand and learn how to work. It could be here, it could be abroad, it could be anywhere in the world. So take a step back. Take one step back to take 2 steps forward. Fair. But चलो, आपने बिजनेस सीख लिया, राइट? Are you aware of any untapped opportunity today कि यार ये जगह पे ना, यहाँ पे वाइट स्पेस है,
लोगों को चाहिए, ज्यादा लोग सप्लाई भी नहीं कर रहे। Etsy एक हाँ। ETSY करके हाँ, of एक course. प्लेटफॉर्म है, हाँ। वहां पे तो कोई भी बिजनेस कर सकता है. हम्म, It's untapped because people are always looking at niche products. People are always looking at आपको सपोज बुद्धा के साथ जीसस का बना हुआ स्कार्फ चाहिए, हाँ, वो मिल जाएगा। वो Etsy पे मिल जाएगा. हाँ। ठीक है, तो आपको अगर चाहिए तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो ना कि कौन सा क्या कस्टमर डिमांड कर रहा है. हम्म, सो सर्व द कस्टमर. देयर इज ऑलवेज एन अनटैप्ड नीड बिकॉज जितनी वैरायटी है, कितने जने रहते हैं यार दुनिया में, कितना इट इज इम्पॉसिबल टू मीट एवरीवन्स नीड. आज मैं यूएस में काम करता हूं, मेरे कस्टमर ने मेरे को बताया था कि अगर एक पाई सर्कल बना लो, सारा जो बिग बॉक्स रिटेलर, ऑर्गेनाइज रिटेल है, यूएस का रिटेल बहुत है, कहता है वो 20% मार्केट को कवर करता है, 80% इज स्टिल अनटैप्ड. इट्स लाइक एनी कंज्यूमर. आपने वो लबूबू का नाम सुना है? हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स. वो कैसे आया, कहां से आया? तो आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स ने पिक कर लिया ना उसको. इन्फ्लुएंसर्स ने क्यों पिक किया? कुछ तो था, हम्म, कहीं तो सेंटिमेंट उसने. देखो, कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा. हम्म, काम सीखो, कुछ डिफरेंट करो. देयर इज niche and there is a need and a niche for something new, something which gives you value. You are unstoppable. And because of today's visibility, it's like instantaneous. It's like the speed of light. I think today लोग कहते हैं कंपटीशन जाता हूं, मैं कहता हूं नहीं, कंपटीशन तो अगर 5 है तो अपॉर्चुनिटी 50 है, 500 है, 5000 है. तो कोई ढूंढे कैसे ये अपॉर्चुनिटी को? जाके अपना Etsy पे अकाउंट बनाओ. तो आप कह रहे हो Etsy इज लाइक अ गुड स्टार्टिंग प्लेस? या एब्सोल्युटली. Etsy है और एक वेफेयर है, Etsy है. इंडिया में आपके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, नीश ब्रांड्स हैं. आई वुड सजेस्ट, बाकी आई कुड बी रॉन्ग, डोंट गो इनटू कमोडिटी स्टाइल वर्क, क्योंकि उसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा. उसमें सिर्फ दाम पे खेल है. दाम पे क्या खेलोगे आप? वो तो फिर सेटअप का खेल होगा. किसी ने सैकड़ों करोड़ों रुपए का सेटअप लगाया हुआ है, वहां आप क्यों प्ले करना चाहते हो? प्ले इनटू वैल्यू एंड प्ले इनटू द नीश एंड प्ले इनटू दैट क्वर्की सेंटिमेंटल वैल्यू है जिस प्रोडक्ट की, इमोशनल वैल्यू है जिस प्रोडक्ट की. And since you are private labeling for foreign brands, right, making clothes for them and other Made-ups. हाँ, made-ups for them, what are the pitfalls to watch out for? अगर किसी को यही काम करना है, right, तो वो इस स्पेस में, पर्टिकुलरली इस स्पेस में अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढे और क्या पिटफॉल्स को अवॉइड करें? अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बोली, पीपल विल, आप अगर Etsy पे फीचर हो जाते हो, ये वाले जो ब्रांड्स हैं बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड भी इंस्पिरेशन के लिए यहीं पे ब्राउज कर रहे हैं. ओके, सो दे कैन फाइंड यू देयर. दे आर ब्राउजिंग ऑन द इंस्टाग्राम. ऑफ कोर्स दे आर. उनको कुछ अच्छा लगेगा. आज भी हमारे बायर्स हमारे को बहुत छोटे छोटे बुटीक ओनर्स के इंस्पिरेशंस भेजते हैं. अच्छा. यस, एब्सोल्युटली. सेकेंडली, किसी कस्टमर का डिजाइन, किसी कस्टमर को बिका हुआ माल दूसरे कस्टमर को मत दो. आप रिलेशनशिप अपना बर्बाद कर लो उससे. व्हाट कस्टमर्स हेट कि जो मेरा एक आईपी है, आईपी कह लो, या जो एक मेरा रेवेन्यू ड्राइवर है, या मेरा जो यूनिक डिजाइन है, आप प्लीज उसको मत दो. यूनिक डिजाइन का मतलब ये नहीं कि आइकन है, मतलब कोई सर्कल बना हुआ है, नो. इवन इट्स द फैब्रिक, इवन इट्स द टच, इवन इट्स द यार्न, इवन इट्स द यूनिकनेस ऑफ द डाइज. आप कस्टमर को 1 साल 2 साल 3 साल रोल करने के बाद उसको धीरे 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 करके मार्केट में पेनिट्रेट. ऐसे नहीं कि एक नई चीज है उसको भी दे दी, उसको भी दे दी, उसको भी दे. नो. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. नो, डोंट. फर्स्ट गिव इट टू योर क्लाइंट जिसके साथ वो जस्टिस करे, जो उसकी वैल्यू दे, जो आपको साइकोलॉजिकल प्राइस दे, उसको सक्सेसफुल होने दो. देखो, आप तभी पैसा कमा सकते हो जब आपका कस्टमर पैसा कमाएगा. ये बात आपको ध्यान कर लेनी है. ऐसा नहीं कर सकते आप दैट ओके, आई मेक मनी, माय कस्टमर मेक्स मनी और नॉट, बट देन यू जस्ट मेड मनी फॉर वंस एंड देन यू आर डन. योर कस्टमर हैज टू consistently, repeatedly make money on your products. That is the only way to grow. And the pitfall is that either you ruin the quality or duplicate the designs. Moving on to your personal side of things, Yes. right? Was there a time when you felt like giving up? You felt कि सब खत्म हो रहा है, छोड़ो इसको, नहीं करते हैं? मैंने 2000 भाई के बाद, चिंटू के बाद, I was in a अच्छा हेडस्पेस में नहीं था, तो मैंने ना कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले लिए. Okay, such as? मुझे लगा कि हमारे पास इतने ऑर्डर्स आएंगे, और मैंने ना उसका फॉरवर्ड बुक कर लिया फॉरेक्स में. फॉरवर्ड पे ना प्रीमियम मिलता है हमेशा. I don't understand this at all. Can you break this down? Okay. Yeah. आज लेट्स से 85 रुपीज डॉलर का रेट है. हाँ. ठीक है. आपको बैंक 1 साल बाद वो 87 में बेच देगा, क्योंकि आज ही बेच देगा. ठीक है.
आप उसको क्यों बेचोगे? क्योंकि आपके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे जो आप उसको डॉलर बेचोगे। मेरी तो डॉलर में है ना, समझ गए आपने? बैंक ने आपसे 1 साल बाद खरीदने का करार कर लिया, आपने बैंक को उसी का बेचने का करार कर दिया। दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ओके, नाउ 99 out of 100 times the rupee will weaken and the dollar will strengthen. आप देख रहे होगे अभी 87, 88, 89। मुझे पता नहीं क्या लगा, मेरे को लगा कि नहीं नहीं नहीं, इतने ऑर्डर आ जाएंगे, इतने ऑर्डर आ जाएंगे। मैंने बहुत सारा डॉलर ना फॉरवर्ड करा लिया। मतलब आपने बैंक को बोला कि अगले साल मैं आपको इतना डॉलर बेचूंगा इस प्राइस पे। हाँ, एक लाख डॉलर करा लिया मैंने। अनफॉर्चुनेटली ऑर्डर हमारे पास कम आए। तो आप तो नहीं बेचो डॉलर, फिर क्या होगा? ऐसे नहीं हो सकता ना, बैंक तो अपना मार्जिन मनी ले। बैंक को तो मैंने बेचना ही बेचना है। अच्छा, बैंक ने, इट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। बैंक को तो खरीदना, अगर मैं नहीं बेचूंगा तो बैंक मेरे बिहाफ पे बाजार से खरीद के डॉलर पूरे करेगा। और आपके बिहाफ पे कैसे खरीद सकता है बैंक? मेरे को डेबिट कर देगा ना मेरे अकाउंट को। ओके, मेरे से इंडियन रुपीस होल्डिंग सम कोलैटरल और समथिंग। कोलैटरल नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। दैट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ठीक है। हुआ क्या कि डॉलर रिवर्स हो गया, डॉलर सस्ता हो गया। इंडियन रुपीस समझ लो, मैं 45 में मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करे कि 50 पे जाएगा, 40 का हो गया और ऑर्डर आया नहीं। लेकिन मेरे को 50 के रेट से ही बैंक को पैसे वापस करने पड़े। ओके, यू अंडरस्टैंड? हाँ। तो वो मैंने एक सट्टा लगाया जो मैंने गलत किया, और वो हमारी कई साल की अर्निंग को डुबो के ले गया। अच्छा, मतलब तब मुझे लगा कि यार ये क्या कर रहा हूं मैं। देन कपिल स्पोक टू मी, ही सेड you can't do anything about it, these are macro factor, let's just not repeat it. And I haven't repeated it, and उस बात को शायद 13-14 साल हो गए, 15 साल हो गए, हम कंसिस्टेंटली उस टूल को यूज करके, कैलिब्रेटेड टूल को यूज करके फॉरवर्ड को, जब ऑर्डर आता है तब हम बुक कराते हैं, हम सट्टे में नहीं जाते। भाई आज ऑर्डर आया ना 4 महीने बाद का, उतने का हमने फॉरवर्ड बुक करा लिया, ₹1, ₹1.5, ₹1, का मार्जिन। उससे आपको कोई फायदा होता है? मतलब आप एक्सपेंसिव बेचते हो बेसिकली? हाँ, नहीं, हम आज 88 का है ना, तो मेरे पास अगर लेट्स से जनवरी डिलीवरी का आएगा तो 88-75 का आएगा। मैंने तो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लिया ना, फॉरेक्स से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। सो वी एंड अप, जो भी हमारी टर्नओवर है, सपोज $20 मिलियन की टर्नओवर है, तो 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे हम इससे कमाते ही हैं। 40 लाख, 50 लाख, इट्स ह्यूज इन नंबर्स। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये सब कुछ मतलब आप लीगल नहीं, बट इट्स हैपनिंग ओवर ईमेल और सम कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन। दिस इज अ रेगुलर बैंक का इंस्ट्रूमेंट, जैसे चेक बनाने की तरह है, आरटीजीएस करने की तरह है। ओके, इट्स लाइक यूपीआई। ओके, इट्स एज सिंपल एज दैट, बट इट इज ओनली फॉर people who are dealing in forex. Okay. You know, I have to be a recognized exporter. I have to be, I get it. There are qualification criteria. Yes. Okay. So that was one time I thought कि ये तो, but it is what it is. Wow. Talking about entrepreneurship, you know, you've had such a long journey. How has entrepreneurship changed you as a person? How has it changed your life? See, entrepreneurship has done two things for me. एक, it always gives you a purpose to get up the next day and go to your office. No matter how, उतने भी अनवेल ना हो कि आप उठ ही ना पाओ, बट जैसे आप अनवेल हो, फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे हम अपनी फैक्ट्री में जाके रहते थे। अगर एंटरप्रेन्योरशिप ना होती तो हम, कोविड वाज अ वेरी डेवास्टेटिंग टाइम। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी वेरी एंगेजिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। आप हमेशा एंगेज्ड हो। यू नो, इट्स लाइक आप लोगों की जनरेशन या जो वीडियो गेम खेल रहे होते हैं ना, बट दिस इज लाइक अ वीडियो गेम इन रियल। इट्स नॉट अ गेम, बट इट इज द एंगेजमेंट लेवल. You know what I'm saying, right? No, I know. I mean, sometimes I describe it as a game in the sense that there are rules to it, there's a skill to it, there are levels to it. From that perspective, you can absolutely say. It is, see, business is a game, but with fixed set of rules and ethics. Ethics, of course. ठीक है? There is no match fixing. It is not a zombie time, or it is not. So that is one. Second, entrepreneurship helps me not only deliver value to my customer, we are bringing चाहे छोटा सा change to my customers' whole business model, जहाँ पे employees हैं, customers हैं, they are having a good time. It's a win-win-win thing. And then there are about 1,000 people directly working for us and about 5,000 people indirectly working for our contractors. Yeah. उन सारी families के साथ भी तो, you know, there is उनकी livelihood, उनका पैशन, और ऑब्वियसली अगर वो लोग काम करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें सोसाइटी के लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट है। सो दीज टू थिंग्स, यू नो, व्हाट, हाउ इट बेनिफिट्स मी एज अ पर्सन, दैट
It's always very engaging. It makes me pull up myself and go. And secondly, it is very, very good for the people who are there connected. Customer se leke supplier tak, vendor tak. Very interesting. And what does your day look like? See, my day is, I get up in the morning. My son is in college. My daughter is in school. What time? I try to get up by 6:30. Acha. 6:30, So you sleep 6:45. by? 11, Okay. 10:30, 11, Okay. 11:30 I sleep. That is the usual. And 6:30 में उठ जाता हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपना फोन जो है वो मैं बाहर रख के चार्ज पे छोड़ देता हूँ. So that Okay. I don't use it. Okay. I get up. बिटिया स्कूल जा रही होती है. She's in class 11. वो जाती है स्कूल and then I do some 10-15 minutes of reading. कुछ भी मतलब there's so many stuff to read. या कोई podcast सुन लिया. Right now I'm into Stoicism. Now Stoicism says that basically based on two principles, controllable and uncontrollable. So just move out of the stuff which is uncontrollable and focus on the controllable. Which and- they say it's only your will and nothing else, right? No, it's how you identify uncontrollable and uncontrollables. What we try to do is that we are trying to grab the uncontrollables, which we can't. लेकिन हम उसमें energy waste करते हैं. So I am a lot into Stoicism reading and हमारे Indians भी authors हैं, वो भी हैं. Then I do my workout, which could be Every anything. day? I mean 4, 5, 6 days a week, unless and until I'm very tired या कहीं जल्दी जाना है. एंड उसके बाद फिर 15-20 मिनट और रिलैक्स कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, कुछ भी कर लिया या कुछ पढ़ लिया, कुछ फनी देख लिया. दैट टाइम आई लाइक टू वॉच समथिंग व्हिच इज वेरी ह्यूमरस. Okay. Some stand-up comedy on the... This is like 7:38 in the No, morning. this is about 8:30, Okay. 8:30, 8:45. And then getting ready and going to work. As simple as that. On the way also, I usually don't take calls because I'm an aspiring speaker, so I've got this vocal warm-up routine. गाड़ी में भी मैं अच्छा. वही करता हुआ जाता हूँ. What's that routine like? So it's basically, making different sounds from your throat so that your Okay. voice is not nasal. It comes from the throat. थोड़ी Okay. आपकी ना, see, because the timbre and the quality of your voice is in itself is very convincing. Correct, correct. For example, अमिताभ बच्चन जी की voice, वो कुछ भी बोले वो चार चांद लग जाते हैं. हाँ. ठीक है. और मैं अभी आपसे जो वो नेजल बात कर रहा था, Hmm. तो वो नेजल वॉइस ना बिलीवेबल नहीं लगती. Okay. For some reason, हाँ. it's got to do with our biology. Conditioning or whatever. Biology. It's got हाँ. to do with biology. So I keep on practicing that. And office जाने के बाद then it's So again can someone find these exercises on YouTube? absolutely, Okay. absolutely. See, these are tens of vocal exercises that are Okay. there. Okay. And then I go to office, check my mails for 10-15 minutes, and then we do a daily meeting Okay. with all the departments. जैसे design department के साथ अलग है, production department के साथ अलग ये है. रोज होता है. ये रोज होगी. और डेली मीटिंग 5 मिनट से ज्यादा की नहीं होती. Just to unblock them. No. What are the problems you faced? What are the solutions you made very quickly? And where are you stuck? Okay. हाँ. 3 problems. रोज मिलना है, शक्ल दिखानी है, और कई बार क्या होता है कि ये सीट वाला इस सीट से बात नहीं कर रहा, लेकिन उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके पास है, Fair. क्योंकि उनको पता ही नहीं है. हाँ. हो ही पता ही सकता नहीं है. है. हाँ. पता ही नहीं है. लेकिन डेली मीटिंग में सबको पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है. देयर इज एन एजेंडा. बच्चों की तरह एजेंडा पढ़ा जाता है. ये मेरे को भेजना है, ये मेरे को भेजना है. अच्छा, ये मैंने भेज दिया. सो वट एवर इज पेंडिंग इज डिस्कस्ड. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड. And then yes, there is deep work. Then I'd spend about a couple of hours in searching for the next big thing कि 6 महीने बाद क्या करना है. Okay. You ये know भी what is- रोज आप सोचते हो. On and off. मतलब yes, I would say 4 out of 6 days Sure. definitely जब काम नहीं होता है तो. And then there is a lot of routine work. किसी को कोई परेशानी तो नहीं है. किसी सप्लायर का कोई अनहर्ट तो नहीं जा रहा. कोई वेंडर कोई बेचारा छोटा सा है, उसकी पेमेंट तो नहीं फंसी हुई. तो 10 मिनट so that things are reputation, goodwill, legacy, Correct. हाँ. because that is very important and that Yeah. is something which is very unlooked upon part. Hmm. वो बोलते नहीं वो तो काम अकाउंट्स का है. बट या 5 मिनट अगर आपको अकाउंटेंट ने बताना होगा कि भाई कोई कंप्लेंट नहीं आई, इट शुड बी बेसिकली 0 कंप्लेंट. हाँ. ठीक है. और जिसको जब हमने पेमेंट प्रॉमिस की हुई वो पेमेंट जानी चाहिए. Hmm. सिंपल. अगर आपको पेमेंट में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप उसको 10 दिन 20 दिन पहले बता दो, लेकिन जब कमिट करो तो उसको पेमेंट करो. That's दैट great. मतलब वो क्लीन चार्ट आना चाहिए कि हाँ. zero Delays. delays और 0 complaints. And then there are so many things. Customers के साथ बात करना,
so many things. And by 6:37, I start back, come back, and then I have my dinner very early. 6:37 I eat, and then I do some fun with my wife, with my kids, play with them 8 8:30 तक. फिर मैं आजकल बिजनेस बुद्धा के लिए रिकॉर्डिंग बहुत करता हूँ, आधा 1 घंटा रिकॉर्डिंग करता हूँ. देन वी डू अ लिटिल बिट ऑफ अ योगा, 15 20 30 minutes whatever. We have an instructor because खुद से योगा नहीं हो पाता. Then we do yoga, and then by we are ready for the bed and watch काफी something. productive day. Again I told you, मतलब अगर मैं खाली बैठूंगा ना तो मैं बिल्कुल बकवास सोचना शुरू कर देता हूँ. So वो तो it's better that I keep myself occupied. Yeah, no, fair. Are there any victory rituals in place? Something that you believe tilt the odds in your favor? फीडबैक. अच्छा हुआ तब कस्टमर से फीडबैक लिया, बुरा हुआ तब फीडबैक लिया. अगर मालाएं पहनानी है अपने आप को तब फीडबैक लेना है, गालियां सुननी है तब फीडबैक लेना है, और ओपन एंड ऑनेस्ट फीडबैक लेना है. जितनी क्लाइंट्स मीटिंग होती हैं, चाहे हमारे शोरूम में, चाहे एग्जीबिशन में, चाहे उसके ऑफिस में, बात करने के बाद, कलेक्शन देने के बाद, सबसे पहले मैं उससे ये पूछता हूँ कि भैया ओके, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, अब बताओ हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, आप हमारी वजह से कहाँ फंस रहे हो. It's all about going back to my father-in-law Kapil Saab. Customers want to be heard. उनको अगर सिर्फ इतना लग जाए ना कि यहाँ मेरी सुनवाई है, तो उसके ना हो जाते नहीं यार. If there is a problem, see, the biggest multiplier in this world, in the world of entrepreneurship and business, is confidence. If I have confidence in you, you will have confidence in someone else. So we will play and win and make tons of money on the basis of confidence. Sure. What and entrepreneurs, जैसे आपने भी 5 मिनट पहले न्यू एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी, they are not able to give their, as a budding entrepreneur, as a new vendor, confidence. तो सुनना भी ना एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है. सो दैट हैज टिल्टेड सो मेनी थिंग्स. कस्टमर से पूछो यार, अच्छा यार ये तो हमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया. मुझे बता कि मैंने क्या नहीं किया. मुझे बता दे कि मेरी कमी कहाँ है. फीडबैक कॉल, इट्स पेनफुल, it's not very easy, and it shatters your ego because you are working with a mindset. आपको तो लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो. But that's exactly what you need, right? Yeah, that's exactly what you need. आप अच्छे कपड़े लेके आए हो तो सबसे पहला काम, अगर आप कहीं भी विजिबिलिटी में जा रहे हो, ये पूछना है कि भाई मुझे बता ऑड क्या लग रहा है. What is throwing you off? Because that is where the opportunity lies. Fair. So even after so much success building such a big company, right, what drives you today? And we were speaking about this off camera also, right, ki sometimes people get comfortable, they lose their drive, right? What is driving you today? See, I will tell you, stay away from consumption. Okay, एक तो ना ही सिर्फ वो आपकी बिजनेस के लिए अच्छा है, आप वापस पैसा इन्वेस्ट करते हो. Stoicism is basically also consuming moderately. Why do you need 500 pairs of jeans? Or why haven't you thrown 15 साल पुरानी jeans? What will you do of it? Or that 50 apps डाल रखी हैं आपने, क्यों डाली हुई हैं? So I would say that what drives me is, at the basis of my drive is, I stay away from consumption. Not that I am a rishi muni or a monk, no. बट ठीक है यार, इतना ही ठीक है. आई एम मे बी अ मीडियोकरली ड्रेस्ड पर्सन इन माई ऑफिस. अदर पीपल, यंगस्टर्स, ओल्ड पीपल, एक्सपीरियंस, दे आर मच बेटर ड्रेस्ड देन मी. What drives me is how much of mental growth I can achieve during the work and by cultivating a hobby which can be self-fulfilling. How do you manage your personal finances? Any tips there? Anything that you've learned over the years? अगर हम 5 मिनट पहले की कॉन्वर्जेशन में जाएं पर्सनल फाइनेंसेस में, कि अगर आप लग्जरी को लग्जरी की तरह समझेंगे तो सब कुछ ही मैनेज है. I mean, when you are spending only a fraction of what you are earning, and that is your art and science of life, I don't think you need much to manage your personal finances. It's very easy. And then we invest a lot in the real estate. Okay. We don't invest into the securities, paper Mutual securities. funds वगैरह कुछ नहीं. Why is that? I believe that real estate is something, which sustains. And the aggregate rate of return, you can identify pockets of real estate. For example, अभी जैसे ये सारा का सारा global supply chain में India आ रहा है. I would say that residential market is for investment. It's a bubble, but
the real estate, the industrial real estate, the commercial real estate is very scanty. वो proportion में है. And real estate is something which is never increasing. It's a fixed supply source. Identify the pockets of areas जहाँ पे real estate है और आप कैसे आइडेंटिफाई करे कोई? थोड़ा सा कर सकते हो आप आइडेंटिफाई. How do you identify? Do you have someone helping you? Do you have someone guiding you? या फिर कुछ आप एक क्राइटेरिया है, कोई थीसिस है जो आप फॉलो करते Come back to awareness. Be aware. Catch the wind. Sure. Catch the, जो एक हल्की सी बारिश के पहले से आती है ना, catch that smell की पता चल जाए कि बारिश होने वाली है, यहाँ पे abundance की बरखा बाहर होने वाली है. You have to be aware. Sure. और अगर उसी टाइम पे मैं कोई काने लगा के सुन रहा हूँ, कोई बात आके चली गई या कहीं कुछ, आप समझ रहे हो ना, मतलब बहुत सारी चीजें ना abundantly हमारे आसपास घूम रही हैं. हमारे को सिर्फ अपना एंटीनास ऊपर रखने हैं. Sure. Okay, we'll do a quick rapid fire. Absolutely. One celebrity that you would want as your brand ambassador and why? Celebrity as a brand ambassador for our line of product. I would actually, choose someone like Mrs. Sudha Murthy. Okay. She's got everything. Yeah. And yet you would see कि उनके साथ कुछ problem भी होती है, she doesn't get rattled. She's always so I would say that a celebrity or a brand ambassador should enhance and make the culture of your company visible rather than the product. Sure. Something like a Mrs. Sudha Murthy or anyone else who follows on our footsteps. Sure. Tea or coffee? Depends on what time of the day. First cup is always tea. It's never coffee. Office में जाके इतना सा black coffee है. And then evening is tea. अब बाहर जाके क्योंकि चाय बहुत गंदी मिलती है, so it's always coffee. Okay. Yeah. Number one way to reduce stress. Number one way, have a passion outside which you follow as diligently with so much discipline as your work. Sure. It could be any hobby. It could be golf. And we are not playing or doing that hobby for perfectionism. We are doing it for progress. As long as we are making progress, it's fine. Worst part of being a business owner? 24/7. It's like a treadmill. You can never get off. And best part of being a business owner? It's a perpetual high. You are always walking on cloud 9. You are this much above. But for that, a lot of things have to come together. Yeah. You have to be consistent. You have to be financially sound. You have to be invested. Yeah. You have to be aware. But if इन सब चीजों का जब संगम हो जाता है, तो then that's a high which is unmatchable. Yeah. One book you recommend and why? One book which I recommend and why? I would recommend Letters and Essays by Sri Krishnamurti, J. Krishnamurti. Okay. And I would recommend it because he tells you that it's all about perspective. There is nothing good. I mean, obviously there is evil and there is this thing, but everything is about perspective. Okay. So I like what he said beautifully, whenever you're overthinking, measure that thought with two parameters. Is it behaving itself? कई बार जो आपके दिमाग में thought होता है, and will it help you in any way? So that is why I would recommend it. The best advice you have received? I can ask you that question. So Sadhguru, in one of his podcasts, he asked one of his disciples, can you prove, I'm asking you this question, can you prove that this earth, this life, you're actually not living in heaven? I mean, for that, you'll have to first argue that there is a heaven. No. Let's go back to the question. Can you believe that you are not living in heaven? You get to eat what you want to eat. You get to see what you want to see. You get to live the way you want to live. What else is heaven all about? फिर define करोगे तो फिर तो slice करोगे तो, but can you prove that you are actually not living in heaven? Why are we thinking about hell and heaven after we change our life? Yeah, and very interesting.
So that is an advice which I haven't received directly because I've heard him speaking, but that has really resonated with me. That I asked the 100%. viewers, can you prove that you're not actually in heaven right now? Sure. And we'll end with your most fulfilling moment of building this business. The most fulfilling moment of building this business was COVID, when we were able to serve our customers. We were able to support the families by keeping them in house, following जो रूल्स रोज बदलते थे, 12 रूल्स आज कल 12 रूल्स वो अलग हो जाएंगे. By supporting them, by not letting them go, even though we were not making much of profit, but that was very very fulfilling. कि भैया जब हर जगह लोग बेचारे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आई वोंट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट कि लोग इधर से उधर जा रहे हैं, सरकार ने भी जो कर सकती थी किया, बट द इतना सडन और इतना ह्यूमंगस था कि आवर्स वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज जिसको हम चलाते रहे और लोगों का Livelihood. सस्टेन होता रहा. दैट वाज वेरी फुलफिलिंग. Wow. So that brings us to the end of the conversation. I have thoroughly enjoyed the story. So thank you so much for sharing so candidly. Absolutely, it has been my absolute pleasure, and I mean, more to come. Thank you very How much. did you like the conversation? I mean, you see, any conversation, like I just mentioned to you, that I am into awareness, business awareness. So for me, the world was this table. Yeah. You and me were talking. Everything else stopped. So whatever makes your mind stop and single focusly engage in something, that is beautiful. Yeah. That is abundance for me. So very abundant, Great. very, very, very beautiful. And thank you. You're a very nice host and Thank you. amazing Thank you. questions. Thank you so much.